Myself, Dr. Meera Gupta, Professor and Head, Department of Physics at Government Dr. W. Patankar, Girls PG College, Durg. Today I am presenting a video lecture on the topic photo detectors. Under this topic, we will be discuss solar cells. Now we come to the contents of this video presentation. First of all, introduction, then photo detectors, solar cells, material used in solar cells, characterization, advantage and disadvantage, and applications. Now come to the introduction. Photo detectors, also called photosensors, are sensor of light or other electromagnetic radiation. A photodetector has a p-n junction that convert light photons into current. The absorbed photons make electron-hole pair in the depletion region. Photodiodes and phototransistors are the few examples of photodetector. Solar cell convert some of light energy absorbed into electrical energy. Now, what is the history of solar cells? The development of solar cells technology stemmed from the work of French physicist Antoine César Becquerel in 1839. Becquerel discovered the photovoltaic effect while experimenting with a solid electrode in an electrolyte solution. He observed that voltage developed when light fell upon the electrode. About 50 years later, Charles Fritzsche constructed the first true solar cell using junction found by coating the semiconductor selenium with an ultra-thin, nearly transparent layer of gold. Fritzsche's devices were very inefficient converters of energy. They transformed less than 1% of absorbed light energy into electrical energy. Though inefficient by today's standards, these early solar cells fostered among some a vision of abundant clean power. Then this is the history of solar cell. Now come to the what is solar cell? A solar cell or photovoltaic cell is an electrical device that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect, which is physical and chemical phenomenon. तो एक सोलर सेल जो है वो फोटोवोल्टिक सेल होता है. इसका काम क्या है कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है by photovoltaic effects. Then individual solar cell can be combined to the form of modules commonly known as solar panels. The common single junction silicon solar cell can produce a maximum open circuit voltage of experimentally 0.5 to 0.6 वोल्ट. एक सोलर सेल जो है वो 0.5 या 0.6 वोल्ट का ही केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको दे सकता है. बाय इटसेल्फ दिस इजंट मच, बट रिमेंबर दीज सोलर सेल्स आर टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं. व्हेन कंबाइंड इनटू ए लार्ज सोलर पैनल, जब हम इन छोटे छोटे सोलर सेलों को एक लार्ज सोलर पैनल के रूप में कंबाइन कर देते हैं तो हमें मन चाही सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है. ये सोलर पैनल का चित्र आप देख रहे हैं. इसमें छोटे छोटे ये आपके पीएन जंक्शन सोलर सेल्स लगे हुए हैं. ये देखिए कितना बड़ा पैनल बनाया हुआ. इससे हम जितना एनर्जी चाहें, जितने सेलों को हम
कंबाइन करके जितनी एनर्जी मन चाहे एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मेनली हमको याद यही रखना है कि सोलर सेल जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इनको पैनल के रूप में जोड़ करके हम जितना एनर्जी प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल कैसे बनाए जाते हैं? A solar cell is basically a junction diode. Although its construction it is little bit different from conventional PN junction diode. थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे हम PN जंक्शन डायोड बनाते हैं उसमें और सोलर सेल में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी PN जंक्शन डायोड ही है। A very thin layer of P-type semiconductor is grown on a relatively thicker N-type semiconductor. इसमें जो P टाइप का सेमीकंडक्टर है वो एकदम पतला होता है और दूसरा जो सेमीकंडक्टर हम N टाइप का लेते हैं वो मोटा होता है, थिक होता है। अब इसमें से एक को हमें पतला लेना है और एक को मोटा लेना है। We then apply a few finer electrodes on the top of the P-type semiconductor layer. These electrodes do not obstruct light to reach the thin P-type layer. Just below the P-type layer, there is a PN junction. We also provide a current collecting electrode at the bottom of the N-type layer. We encapsulate the entire assembly by thin glass to protect the solar cell from any mechanical shocks. तो आपने इसमें देखा क्या है, एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन है और उसमें जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की लेयर पी टाइप की भी हो सकती है और एन टाइप की हो सकती है। बट इसमें ध्यान ये देखना है कि जो अपर लेयर है जो सूर्य की तरफ, सन की तरफ, सनलाइट की तरफ रहेगी वो एकदम पतली रहेगी और नीचे की जो लेयर है वो जो एन टाइप है वो हमने क्या किया है, उससे काफ़ी मोटी ली हुई है। बस यहाँ पर डिफरेंस यही है कि जो सन तरफ की, सनलाइट के तरफ की जो लेयर है सेमीकंडक्टर की वो एकदम पतली होगी और नीचे वाली लेयर जो है वो मोटी होगी। ऊपर भी हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और नीचे की परत पर भी इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। इन सब को जो है एक ग्लास के द्वारा, थिन फिल्म की ग्लास के द्वारा जो है ऊपर से कवर कर देते हैं जिससे इसका जो है प्रोटेक्शन हो सके, कोई इसमें ऑब्स्ट्रक्ट मत पैदा हो जाए, लाइट उसमें आराम से आ सके और किसी तरह का उसमें डस्ट है या दूसरी तरह की कोई प्रॉब्लम्स जो है वो मत होएं करके उसकी ऊपर वाली लेयर को थिन ग्लास के द्वारा प्रोटेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ये आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर का लेयर है, नीचे ये मोटा वाला एन टाइप का। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, सन के तरफ की जो लेयर है उसको हमको पतला रखना है और नीचे वाली लेयर को हमको मोटा रखना है। इसमें ऊपर जो है ये मेटल रिंग्स लगी हुई हैं जिसके द्वारा चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इसमें इसके द्वारा अट्रैक्ट हो सके। नीचे भी ये मेटल कॉन्टैक्ट लगा हुआ है जिससे कि हम एक लीड निकालते हैं। तो ऊपर का यदि ये पी टाइप का है तो एनोड लीड होगी और नीचे यदि एन टाइप का है तो ये कैथोड की लीड होगी जिसको हमने माइनस से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर ये एक ग्लास, थिन ग्लास की लेयर लगी रहती है जिससे कि इसका प्रोटेक्शन हो सके। ये लिखा हुआ है ग्लास। तो ये मेटल रिंग्स लगी हुई हैं, एक मेटल कॉन्टैक्ट प्लेट लगी हुई है। ये आपका एन टाइप जंक्शन है, ये पी टाइप जंक्शन। यहाँ से आपकी ये इंसिडेंट लाइट जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट है वो ही इसमें उपयोग होती है। तो यहाँ पर ये लाइट आपकी यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। लाइट का इंसिडेंट होने से थिन लेयर हमने इसलिए रखी हुई है कि लाइट जो इस पर इंसिडेंट हो रही है वो इस डेप्लेशन लेयर पर आना चाहिए। पीएन जंक्शन की जो ये डेप्लेशन लेयर है यहाँ तक इस रेडिएशंस को पहुँचना चाहिए, क्योंकि इसका काम यही है कि इस डेप्लेशन लेयर पर ही इसकी वर्किंग होती है। इसमें जो एटम्स हैं डेप्लेशन लेयर के, न्यूट्रल एटम्स जो हैं उनका आयोनाइजेशन होता है और इलेक्ट्रॉन होल्स
पेयर जो जनरेट होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप में आ जाते हैं और प्रोटॉन्स जो होल्स जो हैं वो पी टाइप में आ जाते हैं। क्योंकि डेप्लेशन लेयर का जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज होता है, उसके कारण होल्स जो है वो पी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन तरफ आ जाते हैं। इसकी वर्किंग डिटेल्स में आगे हम आपको सर्किट डायग्राम के द्वारा बता रहे हैं। यहाँ पर ये आपका सिंबल है, सिंबल को भी अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर कोई हमने एरो का निशान नहीं लगाया हुआ है, कुछ नहीं लगाया हुआ है। इसमें हमने ये जो 2 एरोस बाहर की तरफ से लगाए हुए हैं, ये सोलर रेडिएशन को, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन को शो कर रहा है कि बाहर से इसमें सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं। ये सोलर सेल का सिंबल है। जैसा कि आपने देखा, एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, बड़ी प्लेट के द्वारा शो हो रहा है। यहाँ पर जो कैथोड है वो छोटी प्लेट के द्वारा निगेटिव से शो हुआ है। जैसा कि एक बैटरी का सिंबल होता है, बैटरी का प्लस टाइप जो है वो बड़ी लाइन से शो होता है, बैटरी का निगेटिव जो है वो छोटी लाइन से शो हो जाए। तो ये एक जस्ट एक बैटरी का सिंबल है। अब चूंकि ये एक बैटरी का ही कार्य करता है, फोटॉन्स या रेडिएशंस को, लाइट रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और इसीलिए इसको हम सोलर सेल नाम इसीलिए दिया गया है कि ये एक छोटी सी सेल है या छोटी सी बैटरी है जिसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। तो इस सिंबल को याद रखने के लिए आप ध्यान रखेंगे, एनोड जो है वो बड़ी प्लेट के द्वारा प्लस शो होगा, कैथोड जो है वो छोटी सी प्लेट के द्वारा जो ऋण को शो करेगा, कैथोड को शो करेगा, और ये रेडिएशंस को शो कर रहा है। तो ये इसका सोलर सेल का सिंबल है। नाउ सबसे पहले तो हम ये देख लें कि सोलर सेल बनाने के लिए हम किस टाइप के मटेरियल को यूज़ करते हैं और उनकी कुछ स्पेशलिटी क्या होता है, वो मटेरियल की क्या जो स्पेशलिटी है वो होनी चाहिए जो कि सोलर सेल में उपयोग किए जाते हैं। तो मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल, द मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस must have band gap close to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे सोलर सेल बनाने के लिए, उनका जो एनर्जी बैंड गैप है, फॉरबिडन बैंड गैप जो होता है, वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स आर से फर्स्ट सिलिकॉन, गैलिनियम आर्साइड, देन कैडमियम, टेलोराइट एंड कॉपर, इंडियम डाइसेलेनाइड। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल्स को हम सोलर सेल बनाने के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि इनमें ये स्पेशलिटी होती है। तो पर्टिकुलर ये मटेरियल्स ही यूज्ड होते हैं। क्राइटेरिया फॉर मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन सोलर सेल, उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। तो क्राइटेरिया में फर्स्ट क्या है, इट मस्ट हैव बैंड गैप फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इनका बैंड गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, ये जो मटेरियल्स हैं उनमें प्रकाश को अवशोषित करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। अच्छा प्रकाश को अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब कर सकें क्योंकि इनका वर्किंग उसी के ऊपर आधारित है। जितना एनर्जी, जितना प्रकाश ये ऑब्जर्व करेंगे उसी से वो इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट होगा। तो ये ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन इनका अच्छा होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होना चाहिए। देन द रॉ मटेरियल मस्ट बी अवेलेबल इन एबंडेंस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल मस्ट बी लो, यानी अच्छे पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो इसके कॉस्ट भी जो है वो सोलर सेल आसानी से जो है वो कम लागत में बन जाते हैं। तो ये इनकी क्राइटेरिया है मटेरियल्स की, जो मटेरियल इसमें यूज्ड होंगे। देन नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल, व्हेन लाइट रीचेस the p-n junction, the light photons can easily enter in the junction through very thin p-type layer. The light energy in the form of photons supplies sufficient energy to the junction to create a number of electron-hole pairs. The incident light breaks the thermal equilibrium condition of the junction. The free electron in the depletion region can quickly come to the n-type side to the junction.
Similarly, the holes in the depletion can quickly come to the p-type side of the junction. Once the newly created free electron come to the n-type side, cannot further cross the junction because of potential barrier of the junction. Similarly, the newly created holes once come to the p-type side cannot further cross the junction, became of same barrier potential of the junction. As the concentration of electron become higher in one side, that is n-type side of the junction, and concentration of holes become more in other side, that is the p side of the junction. The p-n junction will behave like a small battery cell. A voltage is set up which is known as photon voltage. If we connect a small load across the junction, there will be a tiny current flowing through it. ठीक है, अब हम इसमें से इसका वर्किंग समझ सकते हैं। जैसे ये आपका पीएन जंक्शन है, बीच में ये डेप्लेशन लेयर है, तो जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन सन रेडिएशंस जो है वो अपर लेयर पर पड़ते हैं, तो ये कहाँ पर आ जाते हैं, ये चूँकि ऊपर वाली परत पतली होती है इसलिए इसको क्रॉस करके जो है वो डेप्लेशन लेयर में पहुँच जाते हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि डेप्लेशन लेयर में उदासीन एटम्स होते हैं, तो ये जो रेडिएशंस आती हैं, जो फोटॉन्स आते हैं, वो इस एटम को स्ट्राइक करते हैं, एटम को प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है, और एनर्जी मिलने के कारण एटम जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर के रूप में जनरेट हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप की तरफ मूव कर जाते हैं और होल्स जो हैं वो पी टाइप की तरफ मूव करते हैं। आपको याद होगा जब पीएन जंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो ये डेप्लेशन लेयर का जो पी टाइप की जो पोटेंशियल बैरियर बनती है, डेप्लेशन लेयर की जो पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल होता है, इधर पी टाइप का नेगेटिव होता है और एन टाइप्स का जो लेयर है वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए जो होल्स हैं वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर के पी रीजन में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन रीजन में पहुंच जाते हैं। अब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो होल्स पी टाइप में पहुंच गए और एन टाइप में पहुंच गए, ये फिर से इसको क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर अपना एनर्जी हो जाती है और पर्टिकुलर इनका अपना डायरेक्शन हो जाता है। नाउ characteristics curve of solar cell. The above graph shows the current IV characteristic, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो किया गया है, of a typical silicon PV cell operating under normal condition. The power delivered by a solar cell is the product of current and voltage, से IV. तो जो हमको पावर मिलेगी वो क्या होगी, जो करंट है और वोल्टेज है उनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में मिलेगी। If multiplication is done point for all voltage from short current to open circuit conditions, the power curve above is obtained for a given radiation level. With the solar cell open circuited, that is not connected to any load, the current will be at its minimum, 0, and the voltage across the cell is at its maximum, known as solar cell open circuit voltage or VOC. VOC means for open circuit voltage. At the other extreme, when the solar cell is short circuited, that is the positive and negative leads connected together, the voltage across the cell is at its minimum, means 0, but the current flowing out of the cell reaches its maximum, known as the solar cell short circuit current or ISC, any current at short circuit. Then the span of the solar cell IV characteristics curve ranges from the short circuit current ISC at 0 output voltage to 0 current at the full open circuit voltage VOC. In other words, the maximum voltage available from a cell is at open circuit,
and the maximum current at closed circuit. Of course, neither of these two conditions generates any electrical power, but there must be a point somewhere in between where the solar cell generated maximum power. This can be seen from this graph. Characteristics curve of solar cell. However, there is one particular combination of current and voltage for which the power reaches its maximum value at IMP and VMP. In other words, the point at which the cell generates maximum electrical power. This is maximum power point or MPP. Therefore, the ideal operation of the photovoltaic cell is defined to be at the maximum power point. The maximum power point of a solar cell is a position near the bend in the IV characteristics curve. The corresponding value of VMP and IMP can be estimated from the open circuit voltage and the short circuit current. VMP 0.8 to 0.9, VOC and IMP 0.8 to 0.9 ISC. Since solar cell output voltage and current both depend on temperature, the actual output power will be vary with change in ambient temperature. यह है आपका IV कर्व. देख रहे हैं इसमें, ये हमने पहले आप इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए. ये है सोलर सेल, जैसा कि आपको दिख रहा है. सोलर सेल के लिए हमने ये मेज़र करने के लिए, इसका वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमने वोल्टमीटर लगाया है, ये मिलीमीटर लगाया करंट मेज़र के लिए. ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है. अब हम यदि वोल्टेज और करंट में ग्राफ खींचते हैं तो ये है आपका वोल्टेज और ये है करंट. तो ये वोल्टेज करंट का ग्राफ आप देख रहे हैं. ये शॉर्ट सर्किट पर मैक्सिमम करंट है आई मैक्स. फिर इसके बाद यहाँ पर ये आपका ये कम होते जा रहा है और ये कम होकर के यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट है जहाँ पर कि करंट और वोल्टेज दोनों मैक्सिमम है. यहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी. ये किस में है? ये आपका करेक्टरिस्टिक्स आपका V क्रॉस IMP यानी पावर के साथ वोल्टेज का ये करेक्टरिस्टिक्स है. तो ये मैक्सिमम पावर पॉइंट है. तो इस पॉइंट पर आपको, जहाँ पर वोल्टेज भी मैक्सिमम है और करंट भी मैक्सिमम है, यहाँ पर आपको ये मैक्सिमम पावर प्राप्त होगी. देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एडवांटेज में नो पॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ इट. इसमें कोई पॉल्यूशन, कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है, इसलिए नो पॉल्यूशन होता है. इट मस्ट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. ये बहुत लंबे समय तक इनकी लाइफ होती है. इसमें बहुत जल्दी कुछ भी डैमेज होने का नहीं रहता है, इसलिए बहुत लॉन्ग लाइफ होते हैं ये. देन नो मेंटेनेंस कॉस्ट. इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ नहीं होती है. बहुत एक बार लग गया तो लंबे समय तक ये चलते रहता है. बस इनको थोड़ा सा इसकी बैटरीज वगैरह जो रहती हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. देन डिसएडवांटेज, इट हैज़ हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. इनका इंस्टॉलेशन जो है वो, मतलब इनको लगवाना, इंस्टॉल करना, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है. इट हैज़ लो एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, या पैनल के रूप में इनको लगाना पड़ता है, तो ये इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज. ड्यूरिंग क्लाउडी डे द एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो एट नाइट वी विल नॉट गेट सोलर एनर्जी. जब बारिश का समय होता है या बादल पानी का समय होता है तो एनर्जी जो है इसमें प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, और रात में जो है हमको सोलर एनर्जी जो है वो नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जब उस पर रेडिएशंस ही नहीं पड़ेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा. तो क्लाउडी डेज में जो है सोलर एनर्जी प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है. देन एप्लीकेशंस, इट मे बी यूज्ड एज चार्ज बैटरीज. इट मे be used in light meters. It is used to power calculator, wrist watches
एंड बहुत सारे खिलौने वगैरह रहते हैं, उनमें भी LEDs का उपयोग किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो पहला बैटरीज, चार्जर्स, चार्ज बैटरीज के रूप में, बैटरी तो है ही है, इससे हमको चार्ज बैटरी के रूप में ये यूज़ किया जाता है। फिर देन लाइट मीटर्स के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, पावर कैलकुलेटर, रिस्टवाचेस में उपयोग किया जाता है, और स्पेस क्राफ्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। और LEDs, चलिए, देन हेट्रोजंक्शन सोलर सेल्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हेट्रोजंक्शन सोलर सेल्स कंबाइन टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इनटू वन सेल, ए क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल sandwiched between two layers of amorphous thin film silicon. Used together, these technologies allow more energy to be harvested compared to using either technology alone. देन हायर एफिशिएंसी हो जाती है इनकी। ये हेट्रोजंक्शन सोलर सेल जो है वो बाद में बनाए गए और इनसे ये जो है इनके फ़ायदे हैं। पोटेंशियली lower cost compared to other technologies used in improved performance such as PERC, lower temperature coefficient, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट्स भी कम होता है। देन एक तरह का और सोलर सेल होता है इंटरफेस थिन फिल्म सोलर सेल। ये एडवांस टाइप के सोलर सेल्स जो हैं वो बाद में बने हुए हैं। इंटरफेस थिन फिल्म सोलर सेल्स में क्या होता है, ए थिन फिल्म solar cell is second generation solar cell that is made by depositing one or more thin layers or thin films of photovoltaic materials on a substrate such as glass, plastic or metals. Thin film solar cells are commercially used in several technologies including cadmium telluride, copper, indium, gallium, diselenide and amorphous thin film silica. तो ये सब एडवांस टाइप के अभी सोलर सेल्स बने हुए हैं, इनको भी जानना ज़रूरी है। देन दिस इज़ कंप्लीटेड दिस लेक्चर, वीडियो लेक्चर, और मुझे विश्वास है कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। ये दोनों BSc और MSc दोनों क्लासेस के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और इसे आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देन थैंक यू।